Good morning, everyone. Okay. If you have any questions in the session, please raise your hand. If possible, I will definitely allow you to ask the question. Else, you can put your question in Q&A. Okay. So let's do a quick recap. First of all, we have understood what exactly data is and what are the types of data. Okay. And different like structured, unstructured, and semi-structured. We have seen a couple of examples for that. Okay, so let's continue from here onwards. So people who have joined today and they were not able to join yesterday's session, you can go to our YouTube channel and you can search for the uh, demo session. Okay, this is our channel. And you can go to the videos. Okay, this is yesterday's videos. The current batch that you have enrolled to, it is batch 103. Okay, so you can go and watch the demo from batch 103. So demo for the 2 days, yesterday and today, will be uploaded. Now let's jump back to our website. Okay, and just let me give a quick go through about this website also. So whenever you want to enroll to a course, just go to cloudseco.in. Okay, and you can then go to courses. You can see the available courses. Locate your batch code like this one. Click on this and buy this course for this one. So the discount price is still today midnight. Okay. From tomorrow, it will go back to the original price, that is 5,000, which is again a very less amount. Okay. And once you have enrolled to a course, you need to go log in. You need to log into your Google account or your profile. Go to dashboards, and here you will see the courses that you have opted for. Okay, like this one. So once you go to a course, so the day the recording will happen or the day the course is conducted, the session is conducted, it will be uploaded here. So you will see a menu like this, and daily the session after the session is over, it will be uploaded here. Okay. So suppose I want to see Linux, I can go here, and these are the topics that we covered on that day. For your like to highlight what you have learned on that day, you can click on this and you can watch what we have covered. Okay, like this. Okay, there's the question. Screen is not visible. Let me reshare the screen. I hope it's visible now. Is it visible now? Okay. Is it still stuck? So like there are two questions. Is it stuck or is it visible? I got answer for yes. No sir, it is visible. Okay, thanks for confirming. ठीक है, सो ये वेबसाइट है हमारा जहाँ पे आपको पूरी चीजें डेली अपलोड हो जाएगी जैसे कोर्स होगा अपना, जैसे सेशन होगा. सॉरी अबाउट दैट. नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक्स what we were going to cover as per our content. Yesterday we have seen what is data, what is recent data, or and what is historical data. ठीक है, so okay, आज हम देखेंगे कि yesterday we have also seen why companies need data, right? Data ही उनका biggest asset है जिसकी बेस पे they take business level decisions, and we have seen example of business level decision as well. अभी हम देखेंगे कि डेटा को कंपनी प्रोसेस करती है टू टेक और टू डू सम एनालिसिस ऑन दैट. ठीक है, सो फॉर दैट दे नीड सम कंप्यूटेशनल पावर. ठीक है, तो नॉर्मल सेंस में जब हम कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, उसमें दो चीजें आती है. फर्स्ट,
कंप्यूटेशन, सेकेंड इज स्टोरेज। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटेशन एग्जैक्टली? कंप्यूटेशन इज CPU and RAM, एंड स्टोरेज इज योर हार्ड डिस्क। ठीक है, जो आपका नॉर्मल स्टोरेज है, यू ऑल नो दैट। अभी बेसिकली डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक कंप्यूटर लगता है जो ये तीन चीजें प्रोवाइड करता है, CPU, RAM एंड स्टोरेज। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, people used to process on the computers that they have with them. So companies में उतना ज्यादा डेटा नहीं हुआ करता था एक जमाने में, तो वो लोग अपना जो भी उनका छोटा मोटा प्रोसेसिंग था वो लोग उनके पास मतलब हार्डवेयर परचेस करते थे। उनकी एक लैब बोलिए या उनका एक छोटा सा एक लाइक डेटा सेंटर होता था छोटा सा उनके ही ऑफिस में, जहां पे वो लोग डेटा को स्टोर करके प्रोसेस करते थे। सो फॉर दैट दे नीड टू बाय न्यू कंप्यूटर्स। ठीक है, और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटेशन पावर हाई लगता है। फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से 16 कोर CPU एंड 64 GB ऑफ रैम, और लेट्स से 1 TB ऑफ स्टोरेज हार्ड डिस्क। ओके, ये मुझे एक कंप्यूटर के लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट है। ऐसे मेरे पास में एक 10 कंप्यूटर ला लूंगा मैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस कुछ दिन चलेगा एनालिसिस का। लेट्स से मेरा प्रोसेस चलता है पूरा, जो भी मैं बिजनेस लेवल डिसीजन है उसके लिए जो भी मुझे रिपोर्टिंग करना है, 3 मंथ्स चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, ये कंप्यूटर्स मेरे लिए उतने यूजफुल नहीं रहते हैं क्योंकि मेरी प्रोसेसिंग एंड हो गई है। और हो सकता है नेक्स्ट प्रोसेसिंग जब मैं करूं तो मुझे और ज्यादा मशीन्स चाहिए या और ज्यादा पावर वाली मशीन्स चाहिए। तो अननेसेसरी ये कंप्यूटर्स मैं परचेस करूंगा तो मेरे पास एक बर्डन हो जाएगा और मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों को एड्रेस करने के लिए आया है एक कॉन्सेप्ट, डेटा सेंटर्स। ठीक है, डेटा सेंटर्स ऐसी बिल्डिंग्स होती है जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारा स्टोरेज होता है। ठीक है, और एक कंपनी, लेट्स से मैंने डेटा सेंटर ओपन किया, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे कंप्यूटर्स ला रखे हैं, बहुत सारा स्टोरेज है मेरे पास, नेटवर्क पूरा मैं देख रहा हूँ, इंटरनेट सप्लाई मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्लीनिंग, मेंटेनेंस सब मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे क्लाइंट्स है, लेट्स से इंडिगो, इंडिगो को अपना डेटा प्रोसेस करना है, तो अब तक इंडिगो अगर अपने खुद के मशीन्स परचेस कर रहा था तो सारा मेंटेनेंस, सारा इंटरनेट सप्लाई, इंटरनेट बैकअप, पावर सप्लाई, पावर बैकअप उसको मेंटेन करना पड़ रहा था। अभी मैं बोलता हूँ कि यू डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट कम टू माई डेटा सेंटर एंड होस्ट योर डेटा एंड प्रोसेस योर डेटा हियर। ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग है, आप अपना डेटा यहाँ लाकर यहाँ पे प्रोसेस करना है। ठीक है, सो इंटरनेट मैं देखूंगा, पावर पावर भी मैं देखूंगा। ठीक है, मेंटेनेंस मैं देखूंगा, आपको क्या चाहिए आप मुझे बोलो, मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, ये सर्वर्स आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा, आप आपका डेटा स्टोर करना है यहाँ पे एंड यू हैव टू प्रोसेस द डेटा। सो विच इज अ फेयर डील फॉर companies to process the data, and like they don't need to buy the machines and they don't need to maintain the environment। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब मेरे लिए सहूलत है या एज अ कंपनी कोई भी जैसे इंडिगो के एग्जांपल लिया था, उनके लिए अगर यहाँ पे कन्वीनियंस प्रोवाइड हो रहा है डेटा सेंटर में, सो दे विल ऑब्वियसली गो हियर। ठीक है, अब डेटा सेंटर में क्या होता था, टू अंडरस्टैंड क्लाउड वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस। ओके, डेटा सेंटर में क्या होता था, आपको मशीन्स मिलती है, राइट? जैसा हम लोग साइकिल रेंट पे लेते हैं ना बचपन में, उसी तरह यहाँ पे हम कंप्यूटर्स रेंट पे लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटेशन पूरा मिल जाता है प्लस इंटरनेट पावर एंड एवरीथिंग आई गेट। बट मेरा प्रोसेस है लेट्स से 10 डेज का, सो दे विल नॉट जस्ट गिव मी फॉर 10 डेज, वो लोग मेरे से एक एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, उसमें डिसाइड होगा कि ये मैं कितने दिन के लिए रेंट पे ले रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से 3 मंथ्स के लिए ले रहा हूँ रेंट पे या 12 मंथ्स के लिए ले रहा हूँ रेंट पे। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन अभी तक मैंने ना 50 सर्वर्स रेंट पे लिए थे इनके पास से, लेट्स से सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऑल ऑफ अ सडन मुझे और सर्वर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं इनके पास गया
और मैंने बोला कि कल से मेरा एक बिग बिलियन डे सेल आ रहा है, या मेरा कुछ हाई हाई यूजेज वाला कोई वर्क है मेरा, जहाँ पे जैसा कि Amazon या फ्लिपकार्ट ले लो, यहाँ पे सेल आते हैं, तो जैसे ये बिग बिलियन डे सेल या दिवाली सेल आता है तो ट्रैफिक बढ़ जाता है वेबसाइट पे, ज्यादा लोग परचेस करने लगते हैं, तो उनको वेबसाइट का परफॉर्मेंस हाई रखने के लिए और मशीन्स ऐड करनी पड़ती है। अगर यही ये लोग डेटा सेंटर पे जाके बोलेंगे तो डेटा सेंटर वाला बोलेगा कि भाई कल से तो नहीं मिलेगा, यू नीड टू इन्फॉर्म अस एट लीस्ट 1 month बिफोर। इफ वी कैन मैनेज वी विल मैनेज, एल्स वी विल बाय न्यू मशीन्स। अगर हम आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए नई मशीन्स खरीद रहे हैं, देन अगेन यू हैव टू बी एन इन एग्रीमेंट विद अस। तो वो तो और प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए, तो मेरे को एडवांस में बताना पड़ता है, तो हर चीज मुझे प्लान करके एडवांस में बताना होता है, ठीक है। सो इन्फॉर्म इन एडवांस so that they can arrange the servers and machines for me, which is again a fair deal because मुझे परचेज नहीं करना पड़ रहा है, मैं सिर्फ रेंट पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वही किया अभी तक। अभी क्या हो गया, मैंने 10 मशीन्स और ऐड किए, तो टोटल हो गया मेरे पास 60 मशीन्स। अब इन 60 मशीन्स पे जितना भी मैं लोड इंटरटेन कर सकता हूँ कस्टमर्स का, तो मैं उतना प्रोसेस कर लूंगा। बट अगर ये ट्रैफिक बढ़ जाता है मेरी वेबसाइट पे, तो 60 मशीन्स बस नहीं हो रहा है, मुझे परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन आ रहा है। आई वॉन्ट टू ऐड मोर 5 मशीन्स, ठीक है। तो मुझे 60 का 65 करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अगेन आई हैव टू इन्फॉर्म देम इन एडवांस, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आया है क्लाउड, ठीक है। अभी क्लाउड क्या है, क्लाउड इज अ वर्चुअल डेटा सेंटर, ठीक है। आई विल रिपीट, क्लाउड इज अ वर्चुअल डेटा सेंटर, ठीक है। डेटा सेंटर तो है बट वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि मुझे इसकी लोकेशन के बारे में, ये लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। एंड दे से कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड दे विल गिव यू वन इंटरफेस, लेट्स से यूआई, जहां से आप सारी मशीन सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। अभी इसके बेनिफिट्स दिखाता हूँ आपको। मुझे 50 मशीन चाहिए थे फर्स्ट सेटअप के लिए, तो पहले मैंने डेटा सेंटर को इन्फॉर्म किया था एडवांस में, सो दैट दे कैन अरेंज मशीन्स। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी चाहिए, तो मैं आज 10 AM को बोल रहा हूँ कि मुझे मशीन चाहिए, मैंने डिसाइड किया। 11 AM को मेरे एडमिनिस्ट्रेटर को, जो आप बनने वाले हो, एडमिनिस्ट्रेटर को बोला कि मुझे 50 सर्वर्स चाहिए। तो लेट्स से 12 PM तक, 1 घंटे के अंदर आपको 50 सर्वर्स रेडी मिल गए। अभी बोलो बेनिफिट है या नहीं है मुझे, एडवांस में इन्फॉर्म नहीं करना है। सेकेंड चीज, आई डोंट नीड टू बी इन द एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट नहीं है मेरे पास यहाँ पर। मुझे 3 महीने यूज करना है, मुझे 1 साल यूज करना है, या मुझे एक दिन यूज करना है, या मुझे सिर्फ 2 घंटे यूज करना है, मेरी मर्जी है। तो जितना मैं यूज करूंगा, सिर्फ आई विल पे फॉर दैट ओनली। तो उसको बोलते हैं पे एज यू गो मॉडल। ये है क्लाउड पे एज यू गो मॉडल, मतलब कि मुझे सारे सर्वर्स ना परचेस करने पड़े, ना कोई एक लॉन्ग पीरियड के लिए रेंट रेंट पे लेने पड़े। जब मेरी जरूरत है मैं तब का तब नए सर्वर्स प्रोविजन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, और जितना यूज करूंगा उतना ही मुझे पैसा देना है, ठीक है। किसी में आवरली होता है, किसी में कुछ और होता है, बट जितना यूज करे उतना ही पैसे देना होता है। नाउ व्हाट एल्स, अभी मैं आपको बता रहा था कि मेरा बिग बिलियन डे सेल या दिवाली सेल चल रहा है। ऑलरेडी मेरे पास 50 सर्वर्स है। अभी दिवाली सेल आने वाला है 1 महीने के बाद, तो मुझे 1 महीने पहले सर्वर को प्रोविजन नहीं करना है। मान लो रात में 12 बजे से दिवाली सेल शुरू होने वाला है, तो मैं रात में 10 बजे से सर्वर प्रोविजन कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, आई विल ऐड 10 more सर्वर फ्यू आवर्स अगो, दैट टू फॉर टेस्टिंग। टेस्ट कर लूंगा कि सब सही है, और ये टोटल हो गया 60 सर्वर्स। जैसे ही बिग बिलियन डे सेल या दिवाली सेल स्टार्ट हो गया है, सो आई विल हैव मोर नंबर ऑफ मशीन्स सो दैट आई कैन अटेंड द ट्रैफिक फ्रॉम थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूजर्स, ठीक है। अभी समझो
कि मुझे ये 60 सर्वर्स भी कम पड़ रहे थे, तो मुझे और 5 सर्वर चाहिए अभी के अभी, जो वहां पर पॉसिबल नहीं था, बट क्लाउड में ये पॉसिबल है। ऑल्सो I don't need to manually add these 5 servers. What I will do, I will set up something called auto scaling. ये एक बार मैंने सेट कर दिया, तो जैसा ही मेरा ट्रैफिक इंक्रीज होगा, तो उनको वो परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए या ज्यादा ट्रैफिक को एड्रेस करने के लिए ये ऑटोमेटिकली एक एक सर्वर ऐड करेगा। 61, 62, 63, 5 की भी जरूरत नहीं है अभी। जब 65 के जितना रिक्वायर्ड लोड है तभी जाएगा वो 64 एंड 65 पे। अब मान लीजिए, यूजुअली हम लोग जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे जब सेल आता है तो हम लोग कब एक्सेस करते हैं? हम लोग मॉर्निंग आवर्स में एक्सेस करते हैं, लेट्स से 10 AM या 9 AM से मान लो। तो लोग 8 AM से सुबह में आ गए, हाँ, और रात में 12 बजे तक उन्होंने यूज किया, तो तब तक 65 सर्वर थे। जैसे ही 12 बजने के बाद में लोग लोग सोने लग गए इंडिया में, ठीक है, तो नंबर ऑफ यूजर्स जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं वो कम हो गया। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली काउंट कम होगा, 65 से 64 हो जाएगा, 64 से 63, 62, 61 एंड 60। अगर मैंने हार्ड लिमिट 60 रख दी है तो यहाँ पे रुक जाएगा, वरना इससे भी कम होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सर्वर्स ऐड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली सर्वर्स माइनस हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। आपने इलास्टिसिटी देखा है? नॉर्मली कोई इलास्टिक को आप जैसा स्ट्रेच करते हो उतना स्ट्रेच होगा, जब आपका काम हो जाएगा तो वो वापस से श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है, जब ये प्रोसेस होता है ऑटो स्केलिंग में, उसका है जब ये नंबर ऑफ सर्वर्स ऐड होते हैं तो उसको बोलते हैं स्केल आउट। अब जब नंबर ऑफ सर्वर्स रिड्यूस होते हैं तो उसको बोलते हैं स्केल इन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली स्केल आउट होता है और स्केल इन होता है डिपेंडिंग अपॉन योर द पैरामीटर्स यू हैव सेट। जो भी आपने रूल डिजाइन किया उसके हिसाब से ये ऑपरेट होगा। अभी ये सारी फैसिलिटीज मुझे डेटा सेंटर में नहीं थी। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूं आपको मैं। डेटा सेंटर में क्या होता था, हमारे पास स्टोरेज होता है, ठीक है। स्टोरेज अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई डेटा है जो मैं फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेस कर रहा हूँ, सो देर इज अ कैटेगरी कॉल्ड हॉट स्टोरेज, देर इज अ कैटेगरी कॉल्ड वार्म स्टोरेज, एंड देर इज अ कैटेगरी कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, जो मेरा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेस कर रहा हूँ डेटा, जिसको कल हमने समझा था रीसेंट डेटा, ठीक है, उसको मैं हॉट स्टोरेज पे रखता हूँ। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। वार्म डेटा को नॉट टू हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ लेस फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेस कर रहे हैं। और कोल्ड डेटा, जो बहुत पुराना डेटा है, मतलब मान लो मेरा 10 साल पुराना डेटा, 20 साल पुराना डेटा है, जिसको मैं डेली एक्सेस नहीं करता हूँ, वंस इन अ वाइल कभी करूंगा, हो सकता है 1 साल बाद एक्सेस करूँ, हो सकता है 5 साल बाद एक्सेस करूँ, राइट नाउ आई डोंट नीड इट। ऐसा डेटा जो रेयरली एक्सेस्ड है, ठीक है, इसको कोल्ड पे रखते हैं। ठीक है, अभी ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं इनकी कॉस्टिंग में फर्क होता है। हॉट स्टोरेज वाला बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, वार्म स्टोरेज वाला थोड़ा कम कॉस्टली होता है, हम्म, और कोल्ड स्टोरेज होता है चीप। ठीक है, ऐसा डेटा जिसकी मुझे इमीडिएटली जरूरत नहीं है, तो उसको मैं कहाँ रखूंगा? सस्ते वाले स्टोरेज पे। ठीक है, तो आई माइट स्टोर इट इन कोल्ड। और कोल्ड डेटा और कोल्ड स्टोरेज को और एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज आर्काइव। ठीक है, आर्काइव एक स्टैंडर्ड टर्म है जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में यूज होता है। आर्काइव का मतलब है कि ऐसी चीजें जो अभी आपको मतलब यूज की नहीं है, बट आप उसको डिस्कार्ड भी नहीं करना चाह रहे हो, तो आप उसको आर्काइव में रखते हो। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? नो सर, ऑल क्लियर टू एवरीवन? If anyone has any question, please raise your hand. I'll try to answer it. Hmm?
और इफ द स्पीड इज ऑल्सो टू फास्ट प्लीज लेट मी नो. ओके. सो हॉट स्टोरेज, वार्म स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज को आर्काइव भी बोलते हैं. ठीक है. दोज हु आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, हाँ, और हु आर स्टूडेंट्स एंटरिंग इनटू आईटी, सो डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज टर्म्स. मैं बहुत ही स्क्रैच से ले जा रहा हूं सो दैट आई कैन मेक यू इन लाइन विद अदर पीपल. उसके बाद में हम नॉर्मल ही स्पीड से जाएंगे. ठीक है. दोज हु ऑलरेडी नो दीज टर्म्स प्लीज बेयर विथ मी बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. ठीक है. स्टोरेज हो गया. अभी मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरा कोई डेटा है जो, ठीक है, आई हैव बीन एक्सेसिंग टिल नाउ इन हॉट स्टोरेज. अभी मेरा उसका यूज एंड हो गया है. आई हैव टू मूव दिस डेटा फ्रॉम हॉट टू आर्काइव. तो डेटा सेंटर पे मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे टिकट रेज करना पड़ता था. ठीक है. कि मेरा ये फोल्डर है यहाँ पर, इसको आर्काइव में मूव करना है या कोल्ड स्टोरेज में. सो व्हाट यूज टू हैपन, दिस टिकट यूज टू असाइन टू समवन. टिकट मतलब कुछ नहीं है, एक रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट को ही टिकट बोलते हैं यहाँ पे. ये टर्म याद रखना. ठीक है. हर रिक्वेस्ट का या हर टिकट का एक आईडी होता है. ठीक है. कब कब उसको रेज किया, फिर वो जाता है किसी ना किसी को, इनकी टीम में से किसी को असाइन होगा. अभी वो लड़के के पास में और भी बहुत सारे टास्क पेंडिंग है, तो वो अपना सारा काम करने के बाद में इसको देखेगा. सो इट माइट टेक अ फ्यू वीक्स टू ट्रांसफर दिस डेटा. ठीक है. एटलीस्ट अ फ्यू डेज, कुछ दिन या कुछ हफ्ते लगेंगे ये डेटा को ट्रांसफर करने में आर्काइव में. ठीक है. अब लेट्स से मुझे कोई डेटा प्रोसेस करना है. ठीक है. मुझे कोई डेटा प्रोसेस करना है, सो आई नीड टू मूव, और आई नीड दिस डेटा टू बी प्रोसेस. सो मुझे उसको आर्काइव से हॉट में लाना है. ठीक है. ये मेरा डेटा है. कितना है मेरा डेटा, लेट्स से 500 GB. उसके लिए मैंने टिकट रेस किया. फिर ये टिकट किसी को असाइन होगा डेटा सेंटर के ऊपर. ठीक है. एंड आफ्टर सम डेज और सम वीक्स उसने ये डेटा को इधर लाना शुरू किया. तो वो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्लोली स्लोली डेटा लाएगा यहाँ पर, और हमको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपका डेटा आ गया है, अभी आपको प्रोसेस करना है. ठीक है. सेम चीज अगर मुझे क्लाउड में करना है, सो आई विल नॉट बी रेजिंग अ टिकट विथ क्लाउड. ठीक है. देखो, हमारी कंपनी ने क्लाउड के ऊपर एक अकाउंट बनाया. ठीक है. तो हमको क्लाउड के ऊपर हमारा एक स्पेस मिल गया. हम्म? यहाँ पे कंपनी अपना ही हायर्ड एक एडमिन, जो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हमको अपॉइंट करती है. हमारा काम है सर्वर प्रोविजन करना, हमारा काम है डेटा ट्रांसफर करना, हमारा काम है जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हम करेंगे. ठीक है. अब क्या हुआ, कंपनी ने बोला कि उसको हॉट से आर्काइव में मूव करना है. ठीक है. तो मुझे डेटा सेंटर को या क्लाउड को कोई टिकट रेज नहीं करना है. व्हाट आई विल डू, आई विल गो एंड क्विकली स्टार्ट माइग्रेटिंग डेटा फ्रॉम हॉट टू आर्काइव. ठीक है. कितना टाइम लगा है, जितना भी मेरा डेटा है, लेट से 500 GB डेटा है ना मेरा यहाँ पे, तो कुछ मिनट्स में या लेट से कुछ आवर्स में हो गया. वहां पे मुझे वीक्स लग रहे थे. मैं डिपेंडेंट था डेटा सेंटर वालों पे, बट यहाँ पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ. वैसे ही मुझे आर्काइव से यहाँ लाना है, तो मैंने डेटा वापस से इधर मूव कर दिया. ठीक है. हु विल मूव, पर्सन हु इज मैनेजिंग दिस अकाउंट. ठीक है. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डेटा सेंटर या क्लाउड इस केस में. ठीक है. तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में. ठीक है. हमारी मर्जी, हमको जब सर्वर्स चाहिए हम रखेंगे, जब नहीं चाहिए हम डिलीट कर देंगे. हमारी मर्जी, जितना डेटा हमको मूव करना है बिना किसी थर्ड पार्टी के अप्रूवल के हम उसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का या मेरे आर्किटेक्ट का या मेरे टीम लीड का परमिशन चाहिए. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेटा सेंटर में जिस तरह हम डेटा सेंटर पे डिपेंडेंट थे, यहाँ पे हम क्लाउड पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. तो डेटा मूवमेंट भी मेरे लिए सिंपल हो गया. अभी डेटा सेंटर क्या फैसिलिटी देता था, पूरा नेटवर्क वगैरह जो डेटा सेंटर के लिए रिक्वायर्ड है वो मैनेज करते थे. ठीक है. और हमको जो नेटवर्क रिक्वायर्ड है, हम उनको रिक्वेस्ट करके उस तरह सेटअप करवाते थे. ठीक है. नाउ सेकेंड, सर्वर्स वगैरह प्रोविजन होता था यहाँ पे. हम्म? और डेटा माइग्रेट होता था, ट्रांसफर. ठीक है. इंटरनेट
पावर, इंटरनेट बैकअप, पावर बैकअप सब ये डेटा सेंटर देता था। अभी क्लाउड में, ठीक है, क्लाउड को रन करने के लिए जो भी डेटा सेंटर वाला नेटवर्क है ये अवेलेबल है। हाँ, सर्वर्स प्रोविजनिंग पॉसिबल है, डेटा माइग्रेशन पॉसिबल है, इंटरनेट सप्लाई एंड पावर सप्लाई, एवरीथिंग इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाउड प्रोवाइड्स ऑटो स्केलिंग, जो हमने अभी देखा था, ऑटो स्केलिंग, ठीक है। उसके बाद में सर्वरलेस करके एक टर्म है। व्हाट इज सर्वरलेस, आई विल शो यू इन 1 मिनट। उसके अलावा इंक्रिप्शन, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जो क्लाउड प्रोवाइड करता है। हम्म? उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। ये क्या है दिखाता हूं मैं आपको, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, ये दिखाता हूं मैं। इसका एक थर्ड टर्म है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो ऑब्वियसली डेटा सेंटर भी आपको दे रहा था। बेसिकली सर्वर्स डिप्लॉय करना, जो बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो उसको वो लोग करके देते थे, क्लाउड में हम करेंगे, बट इमीडिएटली दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं आपको व्हाट इज सर्वरलेस, ठीक है। डिटेल में हम देखेंगे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, बट व्हाट इज सर्वरलेस, ठीक है। सर्वर क्या है, व्हाट इज अ सर्वर, इट इज नथिंग बट अ कंप्यूटर, ठीक है, या मशीन, या फिर वर्चुअल मशीन, VM बोलते हैं उसको, ठीक है। ये है सर्वर। इसमें क्या क्या होता है, CPU, रैम एंड हार्ड डिस्क, ठीक है। मेरी वेबसाइट है या मेरा कोई डेटा प्रोसेस करना है, तो उसके लिए मुझे ये तीन कंपोनेंट पक्का लगते हैं। ये तीनों मिला के बनता है कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कंप्यूटर या एक सर्वर डिप्लॉय करूंगा, ठीक है। उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं सिक्योरिटी वाइज चेक करूंगा, पूरा सिक्योरिटी पैचेस वगैरह जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिक्योरिटी बोलता हूँ मैं यहाँ पे। और क्या है, उसके बाद में मुझे एक वेबसाइट होस्ट करनी है, तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए मुझे कुछ टूल्स चाहिए अंदर, वो टूल्स इंस्टॉल करूंगा। और भी बहुत सारी कुछ चीजें करूंगा मैं, और फाइनली जाके मेरा कोड रन करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया एक सर्वर बिल्ड करके मैं सब कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इसका लाइक चलो ठीक है, इसको दिखाता हूँ मैं। ये हो गया सर्वर वाला। सर्वरलेस में क्या होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं कि भाई आपको क्या करना है, एक वेबसाइट रन करना है, ओके, ठीक है। आप बस आपका कोड बता दो हमको, बैकग्राउंड में मशीन मतलब सर्वर, CPU, रैम, डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी पैचेस, उस कोड को रन करने के लिए जो टूल चाहिए, ये सब आप हम पे छोड़ दो। इसके बारे में हम देख लेंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप बस आपका कोड अपलोड करो और कोड को रन करो। तो इस केस में एज एन एंड यूजर मुझे सर्वर बनाने की जरूरत पड़ी है क्या, इस सर्वर को मेंटेन करने की जरूरत पड़ रही है क्या? द आंसर इज नो, it will be all done by the cloud provider. So for me, I am not using any server. I am just running my code. So for me, it is serverless. सर्वर नहीं है मेरे लिए, एक्चुअल में सर्वर है बैकएंड में, इसमें कोई डिनायल नहीं, बिना सर्वर के जॉब ही नहीं चलेगी आपकी। बट मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सर्वरलेस, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर कुछ होता है इस मशीन को, तो इसको रीस्टार्ट करना, ट्रबल शूट करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, पहले केस में। और अगर मुझे इसका बैकअप लेना है कि अगर मशीन मेरी करप्ट हो जाती है तो मुझे उसको रिस्टोर करना है, तो बैकअप एंड मेंटेनेंस ये भी मैं करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझे मुझे ना कोई बैकअप लेना है, ना कोई मेंटेनेंस करना है, ठीक है। ये सारा का सारा क्लाउड प्रोवाइडर करेगा, हमारे केस में Amazon। तो AWS विल मैनेज एवरीथिंग, हाँ, वॉट एवर इज नीडेड फॉर अ सर्वर। हमको सिर्फ फोकस करना है हमारे कोड के ऊपर। तो हमारा डेवलपर हमको कोड प्रोवाइड करेगा, हम कोड अपलोड करेंगे और पूरा वेबसाइट आपका रनिंग रहेगा, ठीक है। अभी ये बोलो, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज डेटा सेंटर में नहीं थी, ठीक है। सर्वरलेस, एनी डाउट इन सर्वरलेस? ठीक है, नेक्स्ट, इनक्रिप्शन। व्हाट इज इनक्रिप्शन?
लेमैन में बात करूंगा मैं कि डेटा मेरा कोई और रीड ना कर सके, कोई और एक्सेस ना कर सके, ठीक है। अगर किसी के हाथ में मेरे फाइल्स लगते भी है तो वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहे, ठीक है। तो मैं उसको इनक्रिप्ट करता हूँ, ठीक है। मैं मेरे डेटा को लॉक करता हूँ ताकि कोई रीड नहीं कर सके उसको। अगर उसके पास फाइल आती भी है तो मैंने लिखा हूँ हाय, तो उसको दिखेगा कुछ तो एक्स वाई। मैंने लिखा हूँ हाउ आर यू, ठीक है, तो उसको कुछ और दिखेगा, ए बी एक्स वाई जेड कुछ तो दिखेगा उसको, ठीक है। तो वो समझ नहीं पाएगा कि डेटा एक्चुअली है क्या ये। इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। सो व्हाट हैपेंस बिफोर क्लाउड, हम जब डेटा सेंटर्स यूज कर रहे थे तो हमको डेटा को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इनक्रिप्ट करना पड़ता था और उसके बाद में डेटा सेंटर में डालना पड़ता था, या फिर हमको खुद को डेटा सेंटर में रखने के बाद भी हमको खुद को इनक्रिप्ट करना पड़ता था। बट क्लाउड में क्या करते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स फीचर प्रोवाइड किया क्लाउड ने कि तुम डेटा को ऑन द फ्लाई जब तुम अपलोड कर रहे होगे क्लाउड के ऊपर, ठीक है, इनक्रिप्ट कर सकते हो। when you are uploading the data to cloud you can encrypt, and when you are downloading the data it will decrypt for you, मतलब उसका रिवर्स कर देगा, रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अभी कौन इनक्रिप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन डेटा को रीड करना चाहिए, कौन नहीं, तो ये सब डिफाइन होता है यूजर मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। और यूजर को क्या क्या परमिशन देना है वो भी है हम जो कवर करने वाले हैं। बट आपको बता रहा हूं मैं, ये इनक्रिप्शन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म बोला था, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये टेक्निकली यूज टर्म है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है कि नॉर्मली ऐसा समझोगे आप लोग, ये क्लाउड है, ये क्लाउड इन्वायरमेंट लेट्स से ये हमारा बॉक्स है, और आउट ऑफ द बॉक्स इसके बाहर वाली कोई चीज, तो ये गलत है। आउट ऑफ द, ये हो गया आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी फीचर्स प्रोवाइडेड है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस क्लाउड के अंदर, या कोई और टेक्नोलॉजी, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब ऐसी चीज जो मुझे कस्टमाइज नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर या ये प्रोग्राम मुझे प्रोवाइड करता है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं उसको। और ये वाला जो टर्म है ना, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स है। तो अगर आप लोग कंपनी ज्वाइन करते हो और आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स बोलता है तो परेशान मत होना, कि वो बात कर रहा है कि उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें अंदर मौजूद हैं। ओके, नाउ इनक्रिप्शन हो गया, सर्वरलेस बता दिया हूं मैं आपको। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एक वर्ड बोला था मैंने आपको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। और एक बोला था IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जैसे ही मैं क्लाउड पे आता हूँ और मैं क्लाउड पे मेरा जो यूआई होता है वहां पे बोलता हूँ कि मुझे 2 सर्वर्स चाहिए, ठीक है, और उसमें इतना जीबी रैम होना है, इतना सीपीयू होना है, और इतना डिस्क स्पेस होना है, ठीक है। और जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मुझे फौरन से एक उसने कंप्यूटर बना के या 2 कंप्यूटर्स बना के दे दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये जो सर्विस है क्लाउड की, जिसकी वजह से मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर पा रहा हूँ या क्रिएट कर पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ऐसी सर्विस जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब उसी तरह सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऐसी सर्विस जो मुझे एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करके देगी, वो हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऐसी सर्विस जो मुझे एक प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करके देगी, वो हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग। ठीक है, AWS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लिस्ट। अभी कंसिडरिंग कि आपको भी AWS की सर्विसेज नहीं पता है, मैं जस्ट आपको गूगल करके दिखा रहा हूँ। सो वन वन पॉइंट टू रिमेंबर, आई विल ट्राई मैक्सिमम दैट आई स्टैंड विथ यू पीपल। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, ठीक है। और मुझे भी नहीं पता, मतलब मुझे भी उतना ही पता जितना मैंने कॉलेज में पढ़ा हूं, या आप लोगों को जितना पता है उतना ही, ठीक है। सो आई विल मेक श्योर के आई ट्राई टू टीच यू हाउ टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, ठीक है। मेरा एक एक सोल पर्पज इसमें एडेड है कि मैं आपको सिखाऊं कि चीजें सीखते कैसे हैं और करते कैसे हैं, ठीक है। सिर्फ बता दूंगा तो वो आपके लिए स्पून फीडिंग हो जाएगी। मैं आपको खुद सर्च करना
या नई चीजें एक्सप्लोर करना सिखाता हूँ, ठीक है। सो नाउ आई डोंट नो एनीथिंग, आई हर्ड अ टर्म कॉल्ड PaaS पास, और AWS क्लाउड में है, और कुछ सर्विस के बारे में बात हो रही थी, तो AWS पास सर्विस लिस्ट मैंने गूगल किया, तो कुछ मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 2 से 3 वेबसाइट जाऊंगा, देखूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि है क्या, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं है, बट मैं आपको एक अप्रोच दिखा रहा था, ठीक है। एक वेबसाइट खोला हूं मैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वर्सेस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऑप्शंस ऑन AWS एंड Azure एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अभी हमारा AWS है, ठीक है। आते हैं, ठीक है। अभी वो डेफिनेशन ही दे रहा है ना, ठीक है ये, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर इफ इट इज विजिबल और नॉट, ठीक है। सो 3 टर्म है, SaaS, PaaS और IaaS, ठीक है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एग्जांपल आपको बोला हूं मैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओके ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में सीधा सीधा एक प्लेटफॉर्म ही बना के दे रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक सर्विस है अमेजोन में जिसका नाम है रेड हैट, RDS, सॉरी, RDS, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, ठीक है, RDS इज PaaS और SaaS। सब लोग अपनी नीड के हिसाब से इसको कोई प्लेटफॉर्म बोलता है, कोई सॉफ्टवेयर बोलता है। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है RDS, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है? आप लोगों ने डेटाबेस का नाम सुना है? कोई भी डेटाबेस, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ओरेकल। ओरेकल एक डेटाबेस है जहाँ पे पूरा डेटा स्टोर होता है, ठीक है, कोई भी कंपनी का, और वो लोग उस, एम आई ऑडिबल टू अदर्स अपार्ट फ्रॉम प्रफुल? प्रफुल, देयर इज एन इशू विथ योर स्पीकर, आई थिंक others are able to hear my voice. Okay, thanks for confirming, प्रफुल, ठीक है। सो ओरेकल एक डेटाबेस है। अगर मुझे ये डेटाबेस क्लाउड पे बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक सर्वर डिप्लॉय करूंगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उसकी मैं पैचिंग करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसके बाद में ये ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, और पूरी सेटिंग्स करूंगा। अभी amazon मुझे क्या बोलता है, या कोई और क्लाउड क्या बोलता है, आप ये सर्वर क्यों बना रहे हो, ठीक है, डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए। आपको कौन सा डेटाबेस चाहिए? दिस वन, हाँ। तो डोंट वरी, जस्ट गिव अस इंस्ट्रक्शन कि डेटाबेस कौन सा चाहिए, हम आपको एक प्रॉपर सर्वर डिप्लॉय करके डेटाबेस सेटअप करके देंगे, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है ये सारा काम? amazon कर रहा है या क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है। तो मुझे उसने पूरा एक सर्वर डिप्लॉय करके रेडी करके दे दिया, ठीक है। अभी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लिया, ठीक है, दैट इज नॉट माई हेडेक। इट इज पैच्ड, मतलब सिक्योरिटी पैचिंग वगैरह सब है, मेरा हेडेक नहीं है, ठीक है। जो भी था, अब इसमें एग्जांपल देता हूँ मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैं डिप्लॉय करता हूँ, तो क्लाउड को नहीं पता कि मेरी नीड क्या है। मैंने, मान लो, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम लिया या लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लिया और डिप्लॉय किया, तो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। बट इस केस में जब वो बोल रहा है कि आपको डेटाबेस डिप्लॉय करना है ओरेकल, तो इन लोग ना मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जो सपोर्टेड है डेटाबेस के लिए, ठीक है, और वो लोग उस तरह से उसको डिप्लॉय करते हैं। अभी मुझे एक्स्ट्रा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको बता दिया था मैंने, क्योंकि मुझे डेटाबेस ही चाहिए। तो मुझे डेटाबेस के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर सर्वर डिप्लॉय करके, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करके, सिक्योरिटी पैचिंग करके, मुझे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दे देते हैं। मैं सिर्फ लॉगिन करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और यूज करूंगा उसको, ठीक है।
अभी कोई सोच रहा होगा कि ये तो सिमिलर है सर्वरलेस की तरह। हाँ, यहाँ सर्वरलेस में मुझे सर्वर का भी आईडी नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं सर्वर में लॉग इन कर सकता हूँ, क्योंकि वो अलग रिक्वायरमेंट था, ये अलग रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली मुझे amazon ने बस सेटअप करके दिया है, और वहां पे amazon ने मुझे सर्वर भी नहीं बताया कौन सा है। तो दोनों में फर्क है, सर्वरलेस एंड दिस वन। सर्वरलेस की और एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे को सर्वर डिप्लॉय करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है, सब करनी है। उसके बाद मैं छोटा सा मेरा कोड रन कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अ, लेट्स से इट्स नॉट अ वेबसाइट, स्टिल आई कैन डू द सेम इन सर्वरलेस इन amazon, ठीक है, यूजिंग अ फंक्शन कॉल लैम्बडा। ठीक है, ये भी चेक करने वाले हम लोग, डोंट वरी। तो हाँ, अभी थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो रहा है देन होल्ड ऑन, जब हम इसको रियल टाइम में देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर बस मेरा काम था अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया देना है, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ? ओके, great. Others? Only a few people are answering. Put it in Q&A if you have any doubt or if you understood. Okay. So ये ये है क्लाउड के बेनिफिट्स, जो मैं ऑन द फ्लाई एग्जीक्यूट करूंगा। ऑन द फ्लाई मतलब जब मेरी जरूरत है तब। आई डोंट नीड टू इन्फॉर्म एनीवन इन एडवांस एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। ओके, आज कुछ और बताना था मुझे। ओके, विल जंप टू AWS अकाउंट क्रिएशन। उसके पहले जस्ट लेट मी हैव अ लुक के व्हाट डिड वी मिस एनीथिंग। या शेख, you can unmute and ask. हेलो Yeah, सर, क्लाउड के बेनिफिट्स तो है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है क्या? ड्रॉबैक्स एज सच विजिबल ड्रॉबैक्स नहीं है। मतलब हर हर एस्पेक्ट में क्लाउड बेटर है डेटा सेंटर से, ठीक है। और आज की डेट में मतलब मोर देन 50% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग डेटा सेंटर पे थे दे हैव माइग्रेटेड टू क्लाउड, ठीक है। अभी भी माइग्रेशन प्रोसेस में है, इसलिए हमारी जॉब्स की चांसेस और बढ़ गए हैं, ठीक है। हमको हमको जॉब्स का पूरा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लाउड पे मूव कर रहे हैं। तो अभी उसमें क्या है, हमको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करना है। एंड एज यस्टरडे मैंने बताया था ना आपको, एडमिन का काम सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब वो चीज करके देना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। कुछ अगर मिस होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। सो हमारा एक्सपर्टीज अलग रहेगा, और नॉर्मल यूजर भी देख के कर देगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर बनाना है तो छोटा बच्चा भी आएगा, ऐसा राइट क्लिक करके यहाँ पर एक फोल्डर बना देगा, ठीक है, न्यू जाके फोल्डर बना देगा, और वो नाम दे देगा न्यू फोल्डर 2। लेकिन हमको पता है कि ये नाम से क्या प्रॉब्लम होने वाली है, और एक सिस्टमेटिक नाम देना है, लाइक दिस, ठीक है। हमको पता है। तो ये डिफरेंस रहेगा। हमको पता है कि ऑलरेडी ये फोल्डर यहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर मैं क्रिएट करूंगा तो डुप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो दिखने में सिंपल है हमारा जॉब, लेकिन हमारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, ठीक है। अब रहा सवाल बेनिफिट का, तो बेनिफिट में ये है भाई कि मैक्सिमम मतलब जो भी चीजें आई है, ये एडवांस्ड वर्जन है, और रिक्वायरमेंट के साथ साथ अपग्रेडेड चीजें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सब चीजें मुझे क्लाउड डेटा सेंटर पे करना पॉसिबल नहीं था। आज भी आज भी लोग डेटा सेंटर यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि दे माइट बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यू इयर्स। अगर मैं डेटा सेंटर पे, लेट मी जस्ट एनलार्ज दिस, ठीक है। इफ आई बुक बुक 10 machines और डेटा सेंटर, ठीक है, 10 servers ऑन डेटा सेंटर फॉर 1 year, ठीक है। तो लेट से मैं दे रहा हूँ उनको 50 रुपीज। अगर यही मैं 2 साल के लिए बुक कर रहा हूँ तो 50 and 50 100 नहीं देता हूँ मैं उनको देता हूँ 80 रुपीज, ठीक है। अगर मैं 3 साल के लिए बुक कर रहा हूँ उनसे, या 5 साल के लिए बुक कर रहा हूँ, तो मैं उनको देता हूँ 50 50 50, मतलब 250 नहीं देता हूँ मैं उनको, या तो मैं उनको देता हूँ 150, ठीक है। तो मुझे सस्ता है, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट उतना सस्ता है। तो
अभी मैं एग्रीमेंट ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने पैसे दिए हैं। सो राइट नाउ देयर इज नो पॉइंट फॉर मी टू मूव इन टू क्लाउड, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका हूँ। ठीक है, मुझे सर्वर्स चाहिए थे, ठीक है, बाकी का है तो मैं देखूंगा कैसा कर सकता हूँ मैनेज। तो दैट इज द रीजन कि स्टिल फ्यू पीपल आर स्ट्रक ऑन डेटा सेंटर। सेकेंड रीजन क्या है, जो डेटा होता है कस्टमर, मतलब जैसे इंडिगो है, इंडिगो में एयरलाइन का डेटा है, कस्टमर्स का डेटा है, amazon है, फ्लिपकार्ट है, हमारा डेटा है उनके पास में, मतलब हमारे ईमेल एड्रेसेस है, फोन नंबर है, हमारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन लोगों के पास स्टोर है। तो कोई ना कोई गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल्स रहते हैं जिसके लिए हमको डेटा कहाँ रखना है, ये सब एक वो उनका डिफाइंड रहता है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा इंडिया के बाहर नहीं रख सकते। कोई कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे डेटा यूएस के बाहर नहीं रख सकते। तो कोई कोई ऐसी क्लॉज है जहाँ पे डेटा में बहुत ही सिक्योर रखना है, और मैं क्लाउड पे अभी रिलाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लाउड जैसा रीसेंट टेक्नोलॉजी है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो वैसे केसेस में ये डेटा डेटा सेंटर पे रखते हैं लोग, जब तक के गवर्नमेंट से इस नॉर्म्स का अपडेट नहीं आता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है तुम तुम्हारा डेटा बाहर रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जब amazon स्टार्ट हुआ था तो उसका डेटा सेंटर इंडिया में नहीं था, ठीक है। तो अगर मुझे फ्लिपकार्ट को क्लाउड पे मूव करना है तो ऑब्वियसली मुझे बाहर मूव करना पड़ेगा इंडिया के, जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी क्योंकि उसमें कस्टमर डेटा है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मुझे डेटा सेंटर पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में इंडिया में भी आ गए डेटा सेंटर्स क्लाउड वालों के, तो आई कैन मूव द डेटा टू क्लाउड बिकॉज द डेटा इज नॉट लिविंग द कंट्री, ठीक है। तो बेनिफिट्स है ऑब्वियसली क्लाउड के, लेकिन हर फैसिलिटी इमीडिएटली हर कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं होती है। वो लोग लॉन्च करते हैं, टेस्ट करते हैं, जब वो मैच्योर हो गया तभी वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो जब तक वो नहीं हो जाता है तो डिपेंड करता है। तो ड्रॉबैक एज सच कुछ है नहीं भाई, मतलब ऑब्वियसली डेटा सेंटर से कंपेयर करेंगे तो एडवांटेज ही है पूरे। चलेगा सर। एक्चुअली मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था कि मतलब अभी आपने बोला ना काफी सारे कंपनीज अभी माइग्रेशन पे हैं, तो जी। कुछ ऐसे सर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं क्या जो सिर्फ ऑन प्रीमाइसेस ही चल सकते हैं, कभी क्लाउड पे नहीं आएंगे? क्योंकि कुछ डेटा क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। हम अगर क्लाउड पे जाएंगे तो पूरा का पूरा डेटा का कंट्रोल उसको दे देंगे ना, मतलब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी कुछ है क्या, इसलिए पूछ। अब ये बैंकिंग सेक्टर सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप बोले ना, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो बैंक वालों ने क्या किया, किसी और के डेटा सेंटर पे भी डेटा नहीं रखा, इन्होंने अपना अपना डेटा सेंटर बनाया। कोई भी बैंक ले लो, इनके खुद के डेटा सेंटर्स है, उनके ही बिल्डिंग में सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में उन्होंने अपना एक डेटा सेंटर बनाया और सारा डेटा वहीं रखते हैं वो लोग। स्पेशली कौन सा डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा। जो डेटा पे मतलब जो हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये लोग ये लोग अभी क्लाउड पे रिलाई नहीं करते। ऑलरेडी इन्होंने कई सारे डॉलर्स, कई $100,000 इन्वेस्ट कर लिए सेटअप करने में। तो उनका पूरा डेटा उनके डेटा सेंटर पे रहता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन ट्रांजेक्शनल डेटा है, नॉन कस्टमर रिलेटेड डेटा है, कोई एडिशनल डेटा है, तो बजाय वो लोग सर्वर्स यहाँ लाने के क्लाउड पे कुछ अपना सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली द डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर और यू आर गोइंग टू प्रोसेस, ठीक है। तो बैंक इज अ बेस्ट एग्जांपल जो अभी नियर नियर फ्यूचर में तो क्लाउड पे नहीं जाएगा, पक्की बात है। अभी गवर्नमेंट का भी सेम होता है, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो लोग क्लाउड पे रिलाई नहीं करते। बट यूएस में स्पेसिफिकली amazon ने गवर्नमेंट के लिए एक अलग से क्लाउड बनाया, ठीक है। एडब्ल्यूएस क्लाउड तो है, उसके अलावा गवर्नमेंट के लिए भी एक क्लाउड है। कैसा है वो, यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, उसका कुछ नाम है, उसका कुछ नाम है, मतलब यूएस गवर्नमेंट क्लाउड दिख रहा है। इनका अलग से पूरा इंटरफेस रहेगा, इनका पूरा अलग से सेटिंग रहेगा। सेम है, क्लाउड ही है, हर चीज है उनको भी, बट वो सिक्योर डेटा सेंटर पे है गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, ठीक है। तो अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है हमसे, तो हमने तुम्हारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो तुम्हारा डेटा तुम यहाँ पे स्टोर कर सकते हो।
जो उनके रूल्स के हिसाब से अप्रूवल मिल गया उसको पूरा। ठीक है, तो आपका जो डाउट है ना वो सही है एकदम, कि ऐसा हो सकता है कि कोई क्लाउड पे मूव करेगा ही नहीं। उसका बेस्ट एग्जांपल बैंक एंड गवर्नमेंट्स। ठीक है, बट स्टिल कुछ डेटा वो लोग अभी भी मूव कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर, जो नॉन क्रूशियल है। ठीक है, जो अगर लीक भी होता है तो उनको उतना वो नहीं होगा, जो 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 सिक्योरिटी रीजन की वजह से लोग मूव नहीं कर रहे ना। ऑब्वियसली ट्रांजेक्शनल डेटा मूव करेंगे नहीं वो लोग। ठीक है, लाइक दैट। एनी डाउट इन दिस? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। यू वेलकम। क्लियर है ना आपको आंसर? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, एनीवन एल्स, एनी डाउट? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, विल क्विकली सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक एडब्ल्यूएस अकाउंट। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, एक नया टैब खोलता हूँ मैं। हाँ, तो गूगल पे जाऊंगा, क्रिएट एडब्ल्यूएस अकाउंट। ठीक है, आई एम अ न्यू पर्सन, आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई ब्लॉग्स मिलेंगे जहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। क्रिएट एडब्ल्यूएस अकाउंट पे क्लिक करना है अपने को, और अपने को एक फ्री टियर अकाउंट बनाना है। व्हाट इज फ्री टियर मैं बताता हूँ। पैसे तो लगेंगे, बट Amazon कुछ सर्विसेज के कुछ मॉड्यूल्स को फ्री भी देता है ट्राई आउट करने के लिए। ठीक है, तो क्रिएट एन AWS अकाउंट ऑन द टॉप राइट हैंड साइड, क्लिक ऑन दैट। ठीक है, यहाँ पे आपको देना है एक रूट यूजर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे देना है अकाउंट नेम। ठीक है, तो अभी पूरा प्रोसेस है, मैं रिक्रिएट नहीं कर सकता हूँ, मतलब मल्टीपल अकाउंट्स हो जाएंगे मेरे, और मुझे मेरी कार्ड की इंफॉर्मेशन, मेरा मोबाइल नंबर, ये सब एंटर करना होता है अकाउंट बनाते टाइम। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपके साथ में ऐसा भी नहीं कि कोई स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले एक लाइव अकाउंट बनाया क्लास के लिए। ठीक है, उसको पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड किया मैंने, और इन्फॉर्मेशन को हाइड आउट किया, मतलब ब्लर किया। ठीक है, फॉर माई ओन सिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली आई कैनॉट शेयर माई कार्ड डिटेल्स विथ यू, अगर यहाँ पे एंटर करूंगा तो आपको सब नजर आ जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ अभी, एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, और ये वीडियो मैं शेयर भी कर रहा हूँ। सिंपल वे है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ठीक है, जैसा बता रहा हूँ वैसा करो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कुछ लोग गलत डिटेल इंटर करते हैं तो उनका अकाउंट क्रिएशन सस्पेंड हो जाता है, तो उनको फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, सो जस्ट माई स्क्रीन इज विजिबल राइट? ठीक है, तो आई हैव म्यूटेड दिस वीडियो। तो गूगल पे जाना है आपको सबसे पहले, ये AWS अकाउंट क्रिएशन या AWS अकाउंट क्रिएट टाइप करना है। ठीक है, कोई ये लिंक आएगी तो ऑब्वियसली Amazon वाली ही लिंक लेना है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट है aws.amazon.com। ठीक है, कोई क्रिएट AWS अकाउंट। अभी यहाँ पे आपको इंटर करना है आपका ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू आप अकाउंट में लॉगिन करने वाले हो। ठीक है, एंड मेक श्योर आप ये क्रेडेंशियल्स, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि गलती से किसी ने अगर आपके अकाउंट में कोई बड़े बड़े सर्वर्स बना लिए तो बिल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेक श्योर अबाउट दैट। सो फर्स्ट टाइप अ रूट यूजर ईमेल एड्रेस, मतलब कि ये एक ईमेल एड्रेस है जिसके थ्रू आप एक सुपर यूजर रहोगे। ठीक है, इसमें अगर किसी को एक्सेस मिल गया इस ईमेल के थ्रू, तो वो आपके पूरे अकाउंट पे एक्सेस है उसको, एंड यू डोंट वांट दैट। ठीक है, सो एंटर योर ईमेल एड्रेस, और एक अकाउंट में क्या नाम देना चाह रहे हो आप, वो एक नाम नेम एंटर करना है। ठीक है, मैंने नेम एंटर किया, ईमेल एड्रेस किया एंटर, और नेम एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अभी आपको इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल आया है। ठीक है, आपको आपका ईमेल ओपन करना है, ऐसा ईमेल आएगा AWS ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ जाना है, और ये कोड वहां पर एंटर करना है कॉपी करके। ठीक है, ये कोड कॉपी किया,
यहाँ पे एंटर किया, तो अभी मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गया कि हाँ आपने जो ईमेल एड्रेस दिया वो आप ही का है। अभी आपको पासवर्ड टाइप करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना प्लीज, और भूल मत जाना। ठीक है, सेम पासवर्ड को इंटर करो 2 बार एंड कंटिन्यू। सिंपल से 5 स्टेप है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फ्री टीयर ऑफर्स करके दे रहा है ना लेफ्ट साइड में। तो फ्री टीयर ऑफर में क्या है, आपको कौन कौन सी चीजें फ्री है जो कभी एक्सपायर नहीं होने वाली है, किन चीजों का ट्रायल 12 महीने के लिए है, और कोई सिर्फ लिमिटेड ट्रायल्स के लिए है। तो ये अमेजोन के डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हो कि पहला आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हो या पर्सनल बना रहे हो, तो हम बनाएंगे पर्सनल अकाउंट, लेकिन कॉर्पोरेट लोग बिजनेस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन पर्सनल अकाउंट एंड एंटर योर फुल नेम हियर। ठीक है, आपका नेम जिसके नाम पे आप अकाउंट बनाना चाह रहे हो, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका नेम एंड आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर के बाद में आपको देना है कंट्री, एड्रेस, सिटी, किस स्टेट में हो आप। ठीक है, और उसका पिन कोड। यहाँ पर पिन कोड डालना है लास्ट में, पोस्टल कोड। क्लिक ऑन आई हैव रीड एंड एग्रीड एंड कंटिन्यू। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। अब सबसे अहम स्टेप ये है, ठीक है, प्लीज इसको मिस मत करना। यहां पर क्या कर रहे हो आप amazon को अपनी कार्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, तो जहां से amazon आपके पैसे डिडक्ट करेगा, आपका कार्ड वीजा, मास्टर या अमेरिकन एक्सप्रेस, ये 3 ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यू डोंट नीड टू इंटर रुपे कार्ड। बहुत सारे लोग रुपे कार्ड करते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो वीजा, मास्टर और अमेरिकन एक्सप्रेस, ये आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालना है आपको यहाँ पर। और जिसका कार्ड यूज कर रहे हो, लेट से आपने आपके फादर का यूज किया, तो बिलिंग एड्रेस में भी आपके फादर का एड्रेस डालना है, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो आपको बिलिंग में यूज न्यू एड्रेस करना है अगर आपने किसी और का यूज किया है तो। ठीक है, और ये क्या होगा, ये जो एड्रेस है, इट शुड मैच विथ योर बैंक एड्रेस। जो भी बैंक अकाउंट है उसके एड्रेस से मैच होना चाहिए। ठीक है, पैन नंबर में आपको नो सिलेक्ट करना है अभी, क्योंकि आप पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैंने एंटर की है। ठीक है, कार्ड नंबर एंटर किया है, उसके बाद में यूज न्यू एड्रेस किया है। ठीक है, यहाँ पर यूज न्यू एड्रेस करना है, कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी डेट करना है, कार्ड होल्डर का नेम एंड सीवीवी, ये सब एंटर करने के बाद में आपको पैन पे नो क्लिक करना है एंड वेरीफाई एंड कंटिन्यू। ये लाइव रिकॉर्डेड है मतलब। ठीक है, फिर क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो अभी ये बैंक आपका वेरीफाई करेगा कि आपने जो कार्ड डिटेल्स दिए करेक्ट है या नहीं। तो पहले ईमेल वेरीफाई हुआ है, अभी बैंक वेरीफाई होगा। ठीक है, तो आपको ये पेज आएगा, आपको ओटीपी मिला होगा आपके मोबाइल नंबर पे। ठीक है, जिसका भी बैंक अकाउंट है उसी के मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है। ठीक है, अब ये ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये आपके पास से 2 रुपए डिडक्ट करेगा एंड लेटर इट विल बी क्रेडिटेड। क्यों डिडक्ट करेगा, कि ये वर्किंग कार्ड है या नहीं उसको कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर कंफर्म हो गया तो आपको ये स्टेप दिखेगा, कंफर्म योर आइडेंटिटी। अगर वहां पे आपने एड्रेस गलत इंटर किया या कुछ और गलती कर दी, तो वो आपको वापस से वहीं पर लाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू इट प्रॉपरली। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू क्रिएट इट करेक्टली बाय फॉलोइंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आपका बैंक अकाउंट भी वेरीफाई हो गया है, अभी आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होना है, मतलब कि आप कौन हो। तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, यू कैन गेट अ टेक्स्ट मैसेज और अ वॉइस कॉल। ठीक है, सो सिलेक्ट टेक्स्ट मैसेज, और वो मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। अभी उसको आपको एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल नंबर चूज कर लो, कंट्री चूज कर लो, और ये कैप्चा कोड, कैप्चा कोड मतलब जो नजर आ रहा है ना आपको, वो एंटर करना है वहां पर। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो एक रिफ्रेश का बटन है। ठीक है, जस्ट एंटर द रिफ्रेश बटन, वो नया कोड दे देगा आपको।
ठीक है, अभी ये मेरे मोबाइल पे कोड आया, मुझे इंटर करना है। बहुत सारे लोगों को ये कोड नहीं आता है, तो दे नीड टू मेक श्योर कि वो नेटवर्क में है। ठीक है, वो उनको मैसेज नहीं आ रहा है तो वो लोग किसी और को एक टेस्ट मैसेज सेंड करो कि नेटवर्क से मतलब मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है, या तो फ्लाइट मोड पे ले जाओ फोन को एंड देन पुट इट आउट आउट ऑफ फ्लाइट मोड। ठीक है, तो वापस से देख लेना, एक बार मैसेज आएगा आपको। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क इशू आता है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो कोड आ गया मुझे, मैंने कोड एंटर किया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पर वो बोल रहा है आपको कि किस टाइप का अकाउंट चाहिए। सो वी विल चूज बेसिक सपोर्ट फ्री प्लान। बाकी मतलब के डेवलपर सपोर्ट प्लान है जिसके लिए मुझे मंथली $29 देना है, या बिजनेस सपोर्ट प्लान है तो $1000 देना है। जिस तरह का प्लान है amazon से उस तरह का कस्टमर सर्विस से आपको रिप्लाई मिलेगा। तो हम बेसिक प्लान लेंगे क्योंकि हमको पैसे नहीं देना है। वी विल ट्राई टू मेक श्योर वी डोंट स्पेंड मनी और वी स्पेंड ओनली मिनिमम अमाउंट वाइल लर्निंग। ठीक है, पैसे ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। जिस तरह से मैं बताऊंगा प्लीज ट्राई टू रेप्लिकेट दैट ओनली। ठीक है, बिजनेस बेसिक प्लान लेना है, बिजनेस या डेवलपर नहीं लेना है। कंटिन्यू। नाउ आपका अकाउंट क्रिएशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी एक पेज आएगा आपको, गो टू Amazon मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, और ये आएगा, आप इसमें एंटर कर सकते हो एज अ फीडबैक या फिर स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्लिक ऑन साइन इन टू कंसोल ऑन द टॉप राइट हैंड साइड। अब वापस से मैं आया हूँ AWS के पेरेंट पेज पे। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट वन इज रूट यूजर, सेकंड इज IAM यूजर। ठीक है, रूट यूजर एंड IAM यूजर। बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड इन कंपनीज और कॉर्पोरेट इज लॉग इन थ्रू IAM यूजर। ठीक है, IAM यूजर क्या होता है हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट अभी क्योंकि हमने नया अकाउंट बनाया है, फर्स्ट टाइम लॉग इन करने वाले हैं, फॉर श्योर हमारे पास सिर्फ रूट यूजर एक ही ऑप्शन है। तो रूट यूजर सेलेक्ट करेंगे, रूट यूजर का ईमेल एड्रेस जो हमने अकाउंट बनाते टाइम यूज किया है वो वाला ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, दिस इज ओनली वन टाइम एक्टिविटी अकाउंट क्रिएशन, तो ज्यादा घबराना नहीं उसमें। ये मैंने एंटर किया ईमेल एड्रेस एंड ऑल दैट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अभी कैप्चा कोड आ गया है, नहीं समझ में आ रहा है तो रिफ्रेश कर लो। सबमिट। नाउ एंटर द पासवर्ड। ठीक है, दिस इज हाउ द अकाउंट विल लुक लाइक फर्स्ट टाइम। ठीक है, रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज कुछ नहीं है हमारे पास में क्योंकि हमने अभी अभी अकाउंट बनाया है। ठीक है, आप जिस तरह से सर्विसेज एक्सप्लोर करोगे वहां पे आज आते जाएगी। ठीक है, बस आज हमको यहीं तक देखना था, अकाउंट बनाने तक। ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा सेंटर, व्हाई डू वी नीड और व्हाई डू कंपनीज नीड डेटा, व्हाट इज क्लाउड, हम लोग क्या काम करेंगे। ठीक है, दिस वी गॉट द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि एक्चुअल है क्या चीज ये। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि यू हैव टू मेक श्योर यू क्रिएट दिस अकाउंट टुडे। ठीक है, आज ही आप अकाउंट बनाओगे, ज्यादा लेट नहीं करना है। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग AWS अकाउंट। AWS होता कैसा है, कैसा दिखता है, पूरी चीजें हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? सर आई हैव क्रिएटेड अकाउंट प्रीवियसली सो आई कैन यूज दैट अकाउंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, अच्छा वो आपने क्वेश्चन पूछा। जिन लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट बनाया था, आई रिक्वेस्ट देम टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, क्योंकि अगर आपका अकाउंट 1 साल से पहले बनाया हुआ है, 1 ईयर ओल्ड है, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो आपको चीजें फ्री नहीं रहेगी। जो चीजें फ्री होनी चाहिए वो फ्री नहीं रहेगी। सो आई रिक्वेस्ट के मेक श्योर यू क्लियर द बिल ऑफ दैट अकाउंट और यहाँ पर एक नया अकाउंट बना लो। बहुत सारे लोग बिल नहीं पे करते हैं और उसके बाद में ना उनका अकाउंट सस्पेंड होता है, एंड उनके दूसरे भी अकाउंट जो बनाएंगे वो सस्पेंड होता है, क्योंकि अमेजोन के पास अल्गोरिदम है, दे आइडेंटिफाई विच विच ऑल अकाउंट्स आर रिलेटेड। तो अगर एक जो बंक मारते हैं ना, बिल नहीं भरते हैं,
वो सारे अकाउंट्स बैक टू बैक ब्लॉक होते रहते हैं। हाँ, या यू हैव एनी क्वेश्चन? Hello, sir. या Actually, I have created my account last 2 years ago. So there is no bill pending, but okay, if you insist, then I can create a new account. But it needs another card email details address. or not? No, Yes. no, you can use same card details, but you need to use another email address. Okay. ठीक है, क्रिएट एन ईमेल एड्रेस एंड ऑन दैट ईमेल एड्रेस क्रिएट दिस अकाउंट। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, आई वांट कि आप लोगों को बिल ना आए ज्यादा उसका। ठीक है, मिनिमम पेमेंट में आप लोग सीख लो, दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस। हाँ, इफ यू आर ओके कि यू कैन पे द अमाउंट, देन डेफिनेटली कंटिन्यू विद दैट अकाउंट। ठीक है, No, sir. I can create. Yeah. ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी डाउट? Okay, so okay, now what will happen next? Tomorrow there is no demo. Demo was for 2 days only. अभी डेमो एंड हो गया अपना। जो लोग आज ही ज्वाइन किए थे, तो आई रिक्वेस्ट के कल का रिकॉर्डिंग चेक कर लो। कैसा चेक करना है अभी आपको दिखाया था, यूट्यूब पे जाना है आपको, क्लाउड सीखो, ये चैनल सर्च करना है। ठीक है, ये आपको लोगो आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब भी कर लो, आपको और वीडियोस आएंगे तो वहां पे अपडेट आएगी। ठीक है, और ये जैसा ये वाला है ना, CS बैच 103 डे 1, उसी तरह आज का वीडियो अपलोड होगा डे 2 के नाम से। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी देखने बोलो, इफ दे आर ओके विद दैट दे कैन ज्वाइन द कोर्स। एंड कल कल आपको कहाँ से ज्वाइन करना है? गो टू क्लाउड सीखो, गो टू कोर्सेस, locate your batch, CS batch 103, click on that, buy this course। ये आज लोगे 2500 है, कल लोगे इसको 5000 है। ठीक है, मतलब रात के 12 के बाद मत लेना इसको, अभी ले लेना। सो यहाँ पे बाकी तो ज्वाइनिंग कैसा करना है, आप लोग ऑलरेडी सेशन ज्वाइन किए हो। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियोस यहाँ पर आएंगे, जिस तरह से जैसा हमने इंट्रोडक्शन किया था। तो ये 2 दिन का वीडियो यहाँ रहेगा, उसके बाद कल से यहाँ पे AWS क्लाउड का आ जाएगा वीडियो पूरा। ठीक है, like this. Any doubts in this? How to buy the course, how to purchase and how to log in? ठीक है, I will be sharing this video. This is already there. मैं लिंक शेयर करूंगा। कौन सा वाला? ये वाला जो भी वीडियो बताया था मैं, अकाउंट क्रिएशन वाला आपको, वैसा तो मैं चैट में भी शेयर कर दूंगा आपको अभी। ठीक है, दिस वीडियो विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप टू क्रिएट द AWS अकाउंट। ठीक है, हाँ, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, AWS चेंजेस इट्स UI या कुछ ऑप्शंस कभी कभी चेंज करता है। इससे थोड़ा हटके अगर किसी को कोई और स्टेप आती है जो मैं आपको दिखाया हूं अभी, तो यू नीड टू जस्ट देयर इज अ पॉसिबल स्टेप, आई विल टेल यू व्हाट इट इज। ठीक है, ऑन द फोर्थ स्टेप इट विल आस्क यू कंफर्म योर आइडेंटिटी, जहां पे आपको वो पूछ सकता है कि भाई ये अकाउंट किसके लिए बना रहे हो। तो वहां पे चूज करना है पर्सनल अकाउंट, और ओनरशिप टाइप में चूज करना है इंडिविजुअल। बस खत्म, इतना ही। कभी भी पर्सनल बिजनेस मत सेलेक्ट करना, पर्सनल, नो पैन कार्ड। ठीक है, ओनरशिप इज इंडिविजुअल। ठीक है, एनी डाउट्स? Once again, I request you all to let your friends and family know about this course. It is a very great opportunity to learn AWS Cloud at a very cheapest price, and the quality, we ensure that the quality is the best you can find it on internet. ठीक है, टिपिकली मार्केट में 30,000, 60,000, 80,000 के कोर्सेज हैं AWS के भी, and you are going to learn it at as low as 2,500 if you buy it today. Okay, hope you find this session useful. ठीक है, see you all tomorrow at 10 a.m. Have a good day. Bye. If I'll be there for 2 minutes, if anyone has any questions, they might ask.